A very good morning to all my dear students. I welcoming you all on the online classes. Today we will take lesson number 5, adjectives, from your active grammar book exercise. Okay, I already give the explanation notes of this lesson and with example also, and given the rules and how we form the adjectives, all that I already given to you. Okay, so today we will take the book exercise. Okay students, okay, let's continue. So here in the first paragraph, the definition part is there. Adjectives are describing words. They describe a noun or a pronoun such as person, animal, a plant, place, or things. Tell us about one of these: shape, size, color, quality and quantity. So adjective क्या शो करता है? Shape, size, color, quality and quantity. We usually place an adjective. So adjective कहाँ use होगा? Before the noun, that is describes. In some sentence it comes after the verb or adverb. तो वर्ब के पहले आता है या एडवर्ब के पहले आता है और नाउन के वर्ब के बाद में आता है, एडवर्ब के बाद में आता है और नाउन के पहले आता है. ओके, सो वी कैन से दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट शो द शेप एंड साइज, विच कलर, quality and quantity, and it will come before the noun, after the verb and adverb. Now see in this some exercise part is there. What is the question is given here? Let's see here. Select one word from A and one word from B and fill in the blanks. तो इस A कॉलम से और B कॉलम से आपको कोई वर्ड यूज़ करके, यानी कि अगर हमने यहाँ से क्यूट लिया कॉलम ए से, तो यहाँ पे हम बेबी लेंगे कॉलम बी से. तो लाइक दिस वी हैव टू मेक द वर्ड फ्रॉम टेकिंग वन वर्ड फ्रॉम द कॉलम ए एंड फ्रॉम द कॉलम बी. लाइक दिस वी कैन मेक adjective. Okay, now see what the example is given. The example is already given. One juicy mangoes. Okay, then happy children, lovely flowers, sick boy, black clouds, poisonous snake, ripe bananas, cute baby. Okay, so you write with pencil in your grammar book with good handwriting without any mistake. Okay, sick boy, cute baby, that I already told you, easy sum and deep voice. Okay, so now come to the next question. What is the question is given here in page number 33. Question number B, fill in the blanks with suitable adjectives. So here the words are given to you. Words are given to you. You have to choose the words from here and fill in the blanks. Okay, so now come to the first fill up. What is given here? Moti take care of our house. He is a dash dog. So faithful dog. बंटी टॉक्स a lot. वो बहुत बात करता है, तो वो कैसा बॉय है? टॉकेटिव बॉय है, बातूनी. ठीक है. फेथफुल का मतलब होता है वफादार होना. ए सोल्जर फाइट फॉर हिज कंट्री. ही इज़ करेजियस, यानी कि बहादुर है, हिम्मत वाला. मिस्टर वर्मा हैज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी कि बहुत काम उन्हें करना है, तो ही इज़ ए बिजी मैन. बिजी मैन. देर आर मेनी पीपल एट द मार्केट. बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, तो सब लोग मिला के क्या हुआ? क्राउडेड हो गए, भीड़ हो गई. देर इज़ ए लॉट ऑफ चिली इन द फूड. बहुत सारी मिर्ची है फूड में, तो फूड कैसा हो गया? स्पाइसी. नेहा हैज़ नथिंग टू डू. शी इज़ फीलिंग बोर्ड. नेहा के पास कोई काम अभी नहीं है, सो अब उसे कैसा फील हो रहा है? बोर्ड लग रहा है, यानी कि बहुत बोर लग रहा है, जैसे वी आर सेइंग इन हिंदी. ओके. राहुल ऑलवेज कम ऑन टाइम. राहुल हमेशा टाइम पे आता है. ही इज़ पंक्चुअल. पंक्चुअल मीन्स डेली, ऑन टाइम. When we do some work on time, that we call it punctual. Okay, then Shambhu has a lot of money. शंभू के पास बहुत पैसा है. He is wealthy. Wealthy यानी कि बहुत पैसे वाला है. ठीक है. Now the sentence C1. I read this story 3 times. It was very interesting. अगर वो स्टोरी मैंने पढ़ा है तो मैं 3 टाइम्स पढ़ी हूँ. 3 टाइम्स. क्यों पढ़ा है? क्योंकि मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पे दी गई. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू fill all the adjectives in a correct order in a correct sentence. Okay, and see the spelling, don't make any mistake. Now see in the question number C, what the question is there, look at the picture and write a suitable expression from the box. So the pictures are there, see the faces of this man, and you have to fill all these words in a correct order. So by seeing this you can feel he looks tired, बहुत थका हुआ है. He looks surprised, यानी कि आश्चर्यचकित है. Something, if you get any birthday gift that you want or you think in your dream and surprisingly your parents give that thing to you, so you are surprised. He looks sad, बहुत दुखी दिख रहा है ये, ठीक है. And then he looks angry, बहुत गुस्से वाला है. He looks dangerous, खतरनाक. He looks hungry, भूखा है एकदम. Your favorite dishes, if any favorite dish is front of you, you feel hungry. Okay. Okay, now come to the next page of your book. Question number D. Write 3 adjectives to describe each of the following. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप सी देख रहे हो तो सी के बारे में कोई ऐसी 3 एडजेक्टिव वर्ड्स आपको बताना है जो सी से रिलेट करे. जैसे सी है, समुद्र, तो समुद्र कैसा है, ब्लू भी है, बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, सी से रिलेट हो रही है, यानी कि सी के एडजेक्टिव हम बता रहे हैं. हाउस ब्यूटीफुल है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस. स्पेशियस मीन्स बहुत जगह है हाउस में रहने के लिए, ठीक है. ए फ्रेंड, तो फ्रेंड इज़ हेल्पफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, काइंड होते हैं, ठीक है. इंटेलिजेंट समझदार, हेल्पफुल यानी कि सहायता करते हैं, काइंड यानी कि बहुत अच्छे होते हैं. ए फ्लावर, एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव वी हैव टू राइट. सो फ्लावर से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं यहाँ पे. सो 1 इज़ ब्यूटीफुल, फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं. फ्रेग्रेंस, तो ये फ्रेग्रेंस देते हैं, खुशबू देते हैं. देन द सन, सनशाइन, हॉट एंड ब्राइट, बहुत शाइन करता है, हॉट होता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, यानी कि आप उसे ऐसे देख नहीं सकते, बहुत कलर्स उसमें, मतलब एक ऐसा चमक रहती है, जैसे वी कंसीडर चमक. ओके, नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर ई, एड इज सूटेबल एडजेक्टिव टू कंप्लीट द कंपैरिजन. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिए गए, दिस वर्ड्स आर गिवन, सो यू हैव टू राइट इन ए करेक्ट ऑर्डर इन दिस सेंटेंस. ओके, सो adjective to this shown in the example, what you have to do, you have to adjective to complete the comparison. यहाँ पे comparison किया जा रहा है. ओके, तो comparison कैसे होना चाहिए, वो सही वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, like sweet as honey, शहद जैसे मीठा, cool as cucumber, blue as the sky, fast as the hair, तेज़ी से दौड़ने वाला, busy, बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं बी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं. प्लेफुल एज ए किटन, जो किटन्स होते हैं वो हमेशा इधर से उधर खेलते रहते हैं. फियर्स एज लॉयन, लॉयन जैसे बिना डरे, निडर होके. जेंटल एज लैम्प, तो लैम्प के जैसे एकदम क्या बोल सकते हैं, मासूम, ठीक है, मासूम बोल सकते हैं आप इसे यहाँ पे. ओके, देन हार्ड एज स्टोन एंड लाइट एज फेदर, तो स्टोन जैसे हार्ड और फेदर जैसे लाइट, यानी लाइट एज ए फेदर. सो हियर वी आर कंपेयरिंग दिस थिंग्स टू द इन दिस वर्ड्स. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच सेंटेंस एंड देयर मीनिंग ऑल्सो. ओके, नाउ सी इन दिस पेज नंबर 34, what is written here. We use comparative degree when 2 people or things are compared. That I already told you. When we are using comparative degree, when we are comparing 2 things or 2 people, जब हम 2 लोगों से या 2 चीज़ों से compare करते हैं किसी और चीज़ को. Okay, and we use superlative degree when more than 2 people or things are compared. जब हम 2 से ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं या थिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है. ओके, नाउ यू हैव टू राइट द
superlative degree and comparative degree by using the positive degree. This is your positive degree and this is your comparative degree, this is your superlative degree. Here also this is your positive degree, this is your comparative degree, this is your superlative degree. Okay, now see in this column, write it down. I already given the example how it is changes. So good is changes to better in comparative degree, best in superlative degree, then bad is changes to worse in comparative degree, worst in superlative degree. Happy is in comparative degree happier and happier. See here we remove the y and put the I and ER and IST. Like this, ER in comparative degree, EST in superlative degree. Now see here thin. Thin जो है यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और आपका वॉवल पहले है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूल, रीड द रूल दैट आई गिवन टू यू इन एक्सप्लेनेशन नोट. सो ये एन जो है वो डबल हो जाएगा, थिनर एंड थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट. नाउ डिफ़िकल्ट. सो इन दिस हम 3 सिलेबल में वर्ड बोल रहे हैं. डिफ़िकल्ट 3 सिलेबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 सिलेबल. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. इम्पॉर्टेंट 3 सिलेबल्स आर देयर, सो मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, the 4 syllables are there, more intelligent, most intelligent. Interesting, interesting. So here also the 4 syllables are there, so more interesting and most interesting. Hope you will understand. Write all the words here according to the rules that I given to you. Understand it, okay? Now come to the next page, page number 35. Fill in the blanks with comparative or superlative form of the adjective given in the bracket. Bracket में जो आपका adjective form दिया गया है उसको यूज़ करके आपको यहाँ पे comparative degree बनाना है, superlative degree बनाना है. तो हाई का क्या होगा, फर्स्ट यू सी द हिमालयज आर द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पे जो हिमालय है उसको सब माउंटेन से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे माउंटेन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EST लग जाएगा. सो दिस इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री. ओके, जब कंपैरिजन 2 से होगा वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ कंपैरिजन 2 से ज़्यादा से हो रहा है वहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा. ओके, सो हियर रॉय इज़ स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि दा से कंपैरिजन हो रहा है. सो राव इज़ स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. द सेकेंड सम इज़ डिफ़िकल्ट. 3 सिलेबल्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सम से कंपैरिजन हो रहा है. द एलिफेंट इज़ द डैश ऑफ ऑल द लैंड एनिमल्स. लार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे कंपैरिजन हो रहा है, ऑल द लैंड एनिमल्स. सिल्क इज़ डैश देन कॉटन. अब कॉटन से सिल्क का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे ERE लगेगा, फाइनर. अनीता इज़ द क्वाइटेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है तो EST लग जाएगा. सब क्लास से कंपैरिजन हो रहा है अनीता का. द डाइनिंग रूम इज़ डैश देन द किचन. अब डाइनिंग रूम का कंपैरिजन किचन से हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ER. वी पुट ER ओनली. उषा इज़ द डैश रनर इन आवर स्कूल. सो यहाँ पे उषा क्या हो जाएगा, उषा सब से कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे तो फास्ट में क्या हो जाएगा, EST लग जाएगा. ओके, आयरन इज़ द डैश ऑफ ऑल द मेटल्स. ऑफ ऑल द मेटल्स. अब यहाँ पे ऑल द मेटल्स से आयरन का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे यूज़फुल का क्या हो जाएगा, मोस्ट यूज़फुल, बिकॉज इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. रूपा इज़ डैश देन हर सिस्टर. तो रूपा का कंपैरिजन किससे हुआ, सिस्टर से हुआ, तो ओल्ड में हम ER लगाएंगे. दैट इज़ योर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ कम टू दिस पार्ट. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस एंड शोन इन द एग्जाम्पल. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 things are there. So what you have to do, you have to compare these 2 first of all and then after the comparison of all these 3. Now see in the example. Raju is not short as Ram. Raju is shorter than Ravi. Ram is the shortest of the all. तो पहले राजू का कंपैरिजन किससे किया गया, राम से, कि राजू जो है राम से शॉर्ट नहीं है. फिर उसके बाद राजू इज़ शॉर्टर देन रवि. राजू जो है
रवि से शॉर्टर है, एंड देन राम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल, तो सबसे छोटा कौन है, राम है. ओके, नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल, ए बस इज नॉट एज फास्ट एज ए ट्रेन. तो बस जो है वो ट्रेन से फास्ट नहीं है. ओके, अ ट्रेन इज फास्टर देन ए बस. जो ट्रेन है वो बस से फास्टर है, यानी कि कंपेरिजन हो रहा है ट्रेन और बस का. एंड एरोप्लेन इज द डैश ऑफ द थ्री. अब एरोप्लेन का कंपेरिजन इन दोनों तीनों में से हो रहा है, तो इसको यहाँ पे फास्टेस्ट लिखें. ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. रेडियो इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज ए टेप रिकॉर्डर. तो रेडियो उतना एक्सपेंसिव नहीं है. टेप रिकॉर्डर इज मोर एक्सपेंसिव देन ए रेडियो. दैट इज वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री. टीवी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द थ्री. तो टीवी को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया, बिकॉज टीवी इज कंपेरिजिंग ऑल द थ्री. जहाँ ऑल द थ्री से हो रहा है वो आपको सुपरलेटिव डिग्री होगा. जहाँ पे एक टू, when we are comparing two things, there we use the comparative degree, and we are telling about any simple sentence or not qualifying anything. At that time we will not use any degree, we use the positive degree. Okay, a zebra is not as big as camel. A camel is bigger than zebra. An elephant is the biggest of the three. This is your superlative degree, comparative degree, and this is your positive degree. Okay, now come to the passage. The passage is given in page number 36 of your active grammar book. Read the passage. So I have given the answers here. You have to write it down by your own, and you have to understand by your own. First I think that I will give the homework of this, but if you did any mistake by your own, and at the examination time you written the answer as your own, spelling mistake is there or the wrong answer is there, your number is cut. So that is why I given the answers here. So a person who is best in the game, see here, a person who is best in the game better than all the players in the world is said to be a world champion. Best जो है, better जो है, this all bright this bold letters are showing the degrees, adjective degrees to you. Okay, so you have to keep things in your mind. Vishwanath Anand became the king of the chess world at the age of 32. Anand was the youngest son of Vishwanathan. He was born on 11 December 1969. He learned the game from his mother at the age of 6. While in school, he participated in several tournaments. His teachers said that Anand was a bright boy and always passed his exam with flying colors. It doesn't mean that flying colors, आनंद जो है वो कलर को फेंकते थे, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास होते थे. ठीक है. His classmates speak about his simple, humble, cheerful nature. He is hardworking, determined player and the स्पीडियस्ट ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियन. स्पीडियस्ट यानी कि बहुत जल्दी ये चेस को खेलते थे. ठीक है. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द लाइटनिंग किड. इंडिया इंडीड प्राउड ऑफ हिज ग्रेट जीनियस. उनको क्या कहा जाता था? लाइटनिंग किड कहा जाता था, और इंडिया को बहुत प्राउड है ये ग्रेट जीनियस पे. ठीक है. सो what we called a person who is best in game better than all the players in the world is said to a world champion. तो किसको बोला जाता है वर्ल्ड चैम्पियन? जो पर्सन गेम में अच्छा हो, बहुत बेस्ट हो और प्लेयर से बेटर हो, तो उसको हम वर्ल्ड चैम्पियन बोलते हैं. विश्वनाथ आनंद बिकेम द किंग ऑफ चेस एट द एज ऑफ 32. ठीक है. किंग ऑफ चेस कब बने? एट एज ऑफ 32. आनंद वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ विश्वनाथन. आनंद जो थे, विश्वनाथ आनंद जो थे, वो अपने फादर के सबसे छोटे बेटे थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 11 दिसंबर 1969. ही लर्न द गेम फ्रॉम हिज मदर एट द एज ऑफ 6. वो कब से ये गेम को शुरू किए थे सीखना? अपनी मम्मा से, एट द एज ऑफ 6. वाइल इन स्कूल ही पार्टिसिपेटेड सेवरल टूर्नामेंट. जो भी टूर्नामेंट्स होते थे, चेस कॉम्पिटिशन होता था, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे. हिज टीचर्स said that Anand was a bright boy and always passed his exam with flying colors. आनंद जो है बहुत ब्राइट बॉय थे, यानी कि बहुत अच्छे बच्चे थे और हमेशा एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास होते थे. ठीक है. His classmates speak about his simple,
humble and cheerful nature. He is simple, humble and cheerful nature के थे. He is hardworking, determined player and the splendidest of the world champion. That's why it is called the lightning kid, and India indeed proud of his great genius. Hope you will write this all this answer in your grammar book with good handwriting with pencil only. Okay, don't write with pen. Hope you will understand. If any doubt is there regarding this book's exercise, this book exercise notes I will give in broadcast group again. Okay, if any doubt is there, you can ask me in my WhatsApp number, message me. Okay students, hope you will understand the lesson number 5 adjective, the explanation notes and the book exercise. Okay student, thank you.